मैं पर कायम हूँ कि अब भाई साहब सुनो ना, حضرت عیسیٰ کو اللہ لے گیا، یہ شرک ہے؟ سوال آپ نے کر دیا، جواب بھی سن لے بڑے پیار سے. سوال کیا 1 منٹ لگایا، میں پونا منٹ لگاؤں گا. ٹھیک ہے، اجازت آپ بات کروں؟ جی جی تھینک یو. جی جے خان صاحب، آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، آپ آرام سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ جتنی مرضی بات کریں. تھینک یو. میں اللہ گواہ، میری خواہش ہوتی ہے جب کبھی کوئی اخلاق سے بات کرے، عزت سے بات کرے، میری خواہش ہوتی ہے میں 2 گنا زیادہ اس آدمی کی عزت کروں، اس کی خواہش کے برابر بات کروں، اسی ٹاپک پر بات کروں. شائستگی بھی ہو، اخلاق بھی ہو، خوش مزاجی، سبھی کچھ اس میں ہو. لیکن پھر بھی میرے وہ جو کیا کہوں، کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کی خان جی ان کو چھوڑیں، آپ چھوڑ دیا ان کو. چلو آپ بات کریں جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے تھے. جی کیا بردر کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا جے خان بھائی، میرا دل کرتا ہے، میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا نا کہ آسمانوں پہ کوئی لے گیا کسی کو اللہ میاں، پر کچھ لوگوں کا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں نا، جو فساد پھیلاتے ہیں دنیا میں، اللہ میاں سوری ایک منٹ، کیا کہا؟ فساد؟ جو فساد پھیلاتے ہیں نا، یہ نہ کہو یار، یہ کیا کیا بھائی؟ میں ابھی دکھا سکتا ہوں 99 قرآن کی. تو بھائی صاحب پہلے کا بندے نا، پہلے میرے فرادہ سوال تک ختم ہو دے رہے یار. اچھا چلے اس کو ٹھیک کرتا ہوں میں، پہلے ٹھیک بندے کا کرتا سوال ہوں، تھا. غلطی سے پاک کرتا ہوں. سوال ہے کہ میرا دل پہلے جے خان صاحب اور محمد احمد کی بات ہونے دیں، پھر دوسروں کی بات ہوگی. بالکل چلو ٹھیک ہے بیٹا، لائٹ آن کر لو. نبوت کے جتنے بھی مجاہدین ہیں نا، جو کام کرتے ہیں دینی، 2 خط اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا لے جس طرح عیسیٰ السلام کو اٹھایا تھا، پھر وہ ان کے ساتھ واپس آئیں، پوری آرمی ساتھ لے گئے ہیں. حضور یہ اکیلے بات نہیں آئے. نہیں ہے، یہ ویسے کیا کروں، افسانہ بھی نہیں اسے کہہ پتہ سکتے. کہ اس سے کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں رہے گا. جب حضور پوری آرمی کے ساتھ اتریں گے نا، کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوئے گا، شائبہ نہیں بچے گا کہ ان کے اوپر کوئی شک بھی کر سکے کہ بھئی یہ نہیں آ رہے. تو جتنے دعا کریں کہ اللہ میاں سارے ختم نبوت کے مجاہدوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھا لے. اور اللہ میاں تو ہر چیز پہ قادر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا سکتا ہے تو سارے مجاہدوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. میں بولے جواب دوں؟ جی جی دے. میں مائنڈ ریڈر بھی ہوں، آپ کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی پڑاس ہے جو آپ نکال رہے ہیں اپنی تعلیم، علم، قابلیت کو اس کے برابر. وہ کیسے؟ جتنی تعلیم سنیں جتنی تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، برین ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، آدمی اتنی ہی بات کر سکتا ہے. بہت تعالیٰ بہت تعالیٰ. آپ نے کر دی بات تو میں ایک دم نتیجہ جے نکال خان صاحب ابھی ایک میرا سوال لے لیں. اور بھائی صاحب میں نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں، مجھے جا رہا ہوں. میرا پرنسپل ہے، آپ کا پرنسپل نہ ایمان سے میں نہ کرنا، مجبور کر دیا. پہلا بادہ بات کر رہا ہے وہ آپ کا بھائی، میرا بھائی. آپ میرے منڈے پہ کاٹھی لگا رہے، میری بات یہ طریقہ نہیں ہے. جس پرنسپل سوری کوئی نہیں یار، مجھے مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے ایمان سے. دیکھا کتنا خوش تھا، بات کر رہے تھے بڑے پیار سے، اخلاقی سے. لیکن دیکھیے بچہ لوگ کوئی بات نہیں، گفتگو کا دیں آنسر کریں سب بڑے. اب بھائی سنیے، گفتگو کا اپنا ایک ادب ہوتا. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کا ادب ہے، والدین کا ادب، مسجد کا ادب، قرآن مجید کا ادب، قبرستان کا ادب. درجہ بدرجہ جو میں نے نام لیے ان کا ادب ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ بول لیتے ہو یا نہ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس دعا میں کیا برائی ہے کہ اللہ میاں جس طرح عیسیٰ السلام کو اٹھایا، آج بھی ختم نبوت کے مجاہدوں کو اٹھایا تاکہ دنیا میں یقین پیدا ہو جائے اور وہ ایک آرمی کی طرح واپس آئیں. یہ دعا بری کیوں لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے کتنے سیکنڈ لگائے یہ سوال پوچھنے میں؟ جواب آپ آخری جو 5 سیکنڈ 1 سیکنڈ لگے گا. میں ابھی آپ کو قرآن کی آیت سکھاتا ہوں، خالی آیت کا نام بتا دوں گا، آگے اس کا نمبر ہے، رکوع ہے یا وہ آیت ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن ایسی چیز ہے، یہ مشترکہ ہے، مشترک ہمارے اور آپ کے درمیان. آپ خود پڑھیں، اس کا میننگ ترجمہ کریں یا کسی سے کروائیں تو سب بھی کریں. سنیں، بات ختم ہونے دیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں. ایک ہولڈ آن، لائٹ آن کرنی پڑے گی بچے، اور لائٹ آن کرو جی.
ओ मैंने जय खान साहब अभी मुझे टाइम मिलेगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टोपी दे सो मेरा भाई था क्यों दिया वो? ये खान अच्छा, साहब जय खान बहुत साहब, बड़े- मेरा ये खान सवाल साहब ले लें बहुत अभी। बड़े गालीबाज है। मैं आपको बता दूं, ये खान साहब बहुत बड़े गालीबाज है। नहीं नहीं ये आज बंदा मूड में है, ये आज जिंदगी का उसका सताया हुआ है। ये आदमी मेरा छोटा भाई जिंदगी से सताया हुआ है यार, ईमान से। आज नहीं ऐसा इसे कुछ कर बहुत रहे हैं, आज ना टेंशन है। कहें इसे खान साहब को। बात सुना, जवाब सुने। इसे इतनी टेंशन है, इतना बेजार है बेचारा। अपने दिल की पड़ास निकालने के लिए, अपने दिल को तस्कीन देने के लिए आप इन बिटवीन यू, आपके दरमियान में थोड़ी सी अपनी टोर बनाने के लिए, पंजाबी में कहते हैं ऊंचा शुमला करने के लिए खान को कह दिया ये है वो है ये है। लेकिन मेरी ये आपसे खान गुजारिश साहब है- अभी आप सैन की बराड़ पे गालियां निकाल के, इतनी बुरी बुरी गालियां निकाल के चले थोड़ी देर छोड़े पहले- अहमद साहब, नहीं, अहमद साहब छोड़े। आपके बात सुने। मतलब कि ये अच्छा, जय बातें खान ना साहब, मेरा हैं। सवाल है, मेरा छोड़े। अहमदी भाइयों से सवाल है कि मेरा सवाल कोई बहुत बुरा था, उसको ड्रेस नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। ये बात देखें, है तो सूर बस की। फिर छोटा सा मेरा सुन भी लें सवाल है। दोबारा। हाँ जी, 5 खान साहब सेकंड उस में चीज का सवाल जवाब है। दे दें। ये जो उन्होंने दुआ का कहा है ना, उसका जवाब दे दें। अब ये सुनते दुआ हैं। बुरी क्यों लग रही है? प्लीज, थैंक यू। ओ ब्रदर, अहमद भाई आप बताएं, जिनका ये कीदा है उनको कोई दुआ बुरी तो नहीं लगनी चाहिए ना? हमारा हाँ, तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी सलाम आपके अलैकुम। इतनी दुनिया में जो लोग हैं, अस्सलाम। मसला ही अस्सलाम का है, वो ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक है, प्लस जमात अहमदिया। और मैं एक और बड़ी अहम बात बताऊं, ये दुआ जी। किस लिए एक इम्पोर्टेंट है। जी जब हम कुरान मजीद भी पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला कहता है कि ये जो यहूदी हैं, ये जिनका ये कौल है, और वो शुबे में है, उनको पता ही नहीं है। तो शुबा दूर करने के लिए कितनी मुबारक दुआ है ये कि अल्लाह मियाँ 100-150 खत्म इमदाद चुक, ताकि दुनिया के अंदर यकीन पैदा हो यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, फिर वो आर्मी की सूरत में वापस आए। कितनी अस्सलाम मुबारक दुआ है। अलैकुम। मैं कहता हूँ कि हर बंदा ईमान ले आएगा, यकीन माने खुदा एग्जैक्टली खुदा पे ले आएगा। ओ मैं भाई समझता साहब, हूँ। बात मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी खान साहब, आवाज आ रही है आपकी। मुझे अब जोर लगाना पड़ा, मैंने 2 मरतबा सलाम दिया, नहीं, लेकिन सर करें बात, जोर ना लगाएं, इस उम्र में जोर नहीं जोर लगाते। नहीं लगा रहा, मैं आपको जगा रहा था। सारी टू से यार, माइंड ना करना प्लीज मेरी किसी बात का। मैं आप, वी आर बिलोंग टू हाफ स्लीपी नेशन। वी आर बिलोंग टू हाफ स्लीपी नेशन। मैंने अपने आप को भी शुमार किया। व्हाट्स दैट मीन कि हाफ स्लीपी नेशन? प्लीज इतना मेरी तेरे को पता, 2 बार सलाम दिया। आपको जगाना चाहता था कि मैं उठा हूँ लाइव। अच्छा, हमें जगाएं, वो बताएं कि ये जो दुआ है उसके बारे में हमें थोड़ा समझा दें, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बता दें बस। कौन सी दुआ? ये तो आपने पूछा ही, कुछ दुआ की बात नहीं की। ये चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सुन लें। मैंने क्या, ओ भाई साहब, मैंने क्या कहा था? मैं कुरान की आपको आयत बता, तो ये कहा था। बताएं कुरान नहीं क्या है? बोलो, पहले जागो, पूरा जागो। ये कहा था या नहीं कहा था? गुजारिश की थी। ये कहा था। बकोला फैनी दियो पुत्रो, ध्यान दे, लिख सूर्य पुत्रो, बेदार करने और पढ़ो जा क्या बात? मैदा और लिखो नक्की क्या मैदा। अच्छा, किस मुंह से जय खान साहब, वरना मैं अक्सर हूँ। जय खान साहब, किस मुंह से अब आप कुरान की आयत का जिक्र कर रहे हैं? पुत्रो तो get out। वाह, सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम अनपढ़ कहते जाल दे हैं। पुत्रो भैन चोद रहे हो। हाय, तुम साजरों हाय, कर हाय। सके। खान साहब, दो मजा आ आने रहा के है। बंदे हो, खान दो साहब, टके के बंदे, दो खान साहब, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। दो टके के बंदे बरोड से आ जाने हो। भाईजान, मैंने पहले कहा था I ये have no खान साहब time। जो है, खान साहब, I have no time ये कुछ for ज़हन- खान donkey साहब people। तरावियां, ये आप तरावियां पढ़ रहे हैं? खान I साहब, ये have no गालियां देके time। तरावियां पढ़ रहे I हैं? have no time for donkey people। ओ यार, मेरे को नहीं चुकेगा यार, you are सगमा भाई, donkey, यार you थलो are- सगमा साहब, to me you are donkey and dog and monkey and सूर भी हो। ये मिर्जा ने कहा था, मिर्जा कादियानी ने। भाई जी मैं ये तो कादियान में रहने बहुत वाले बड़ा सूर हैं। गालीबाज है, बहुत बड़ा गालीबाज है। या, नहीं हो। खान साहब ये बहुत जोर ना लाओ, बहुत ਤੁਸੀਂ- फरिश्ता आ जाएगा। ਉਹ बहुत ਤੁਸੀਂ जोर ਕਾਬਲ ना ਆ लाओ, कितना बहुत फरिश्ता तेरे चुक जाए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ।
वो मैं जा रहा हूँ तेरे घर में पाई खा कर मुड़ेरा ले खबर गया, लो घर की खान साहब ले गया। मैं जा रहा हूँ फील करो मिर्चा फील करो मिर्चा ये सब कादियानी फील करो नीचे खान साहब ना जाना घर मुड़ेरा ले गया। नीचे कादियानी बैठे नीचे हैं लो। फिर में माऊ खिलन देता सब मर्जी तक ये बात भी ना, ये तरावियां पढ़ रही हैं, तरावियां पढ़ रही हैं, मिर्जा पड़दा थी तरावियां, मिर्जा पड़दा थी ये तरावियां पढ़ रहे हैं खान साहब जो है ना, तरावियां पढ़ रहे हैं। ओए मिर्जा पड़ भाई जी मैं पहले कही बहुत बड़ा गाली बात है इसके बाद कुछ यार यार ये आपने ना मोहम्मद भाई ये बड़ी एक दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई है आपने अभी। हाँ जी, ये यकीन माने इतनी खूबसूरत दुआ है, अगर अल्लाह ताला सुन ले तो। मेरे भी मेरा ज़हन तो में एक और दुआ भी करवाने को दिल करता है, पर उस दुआ पे मेरे अपने अहमदी भाइयों ने बहुत मारना है मुझे, मैं वो दुआ नहीं कराता नहीं नहीं मेरा ਉਹ ਰਹਿਣ मेरा ਦੇ भी ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਦੁਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾहिदीन ਨੇ ਅੱਲਾ करे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ नहीं ਹੋਵੇ। नहीं 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 यार फिर देखा ना वो लूज बात कर दी ना, क्यों नहीं? ना ना ना, ये सब इन्होंने के हमें सब जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए, जिंदा जिंदा। चाहिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एज ए आर्मी वापस आए, और दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस दुनिया को यकीन नहीं है, आपने कुरान में भी मेंशन किया है कि ये शुबे में पड़े हुए हैं, इनको पता ही नहीं है। तो मोहम्मद भाई देखें, लेकिन ये शुबा यकीन में बदलेगा, अल्लाह ताला पे यकीन हो जाएगा, सारी दुनिया अल्लाह ताला के हुजूर गिर जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग दुआ है ये। दुनिया के जो 4 या 3 मजहब बड़े हैं ना, मैं Exactly. समझता हूँ कि उनका मसला सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। उसमें प्लस जमात अहमदिया भी है, ठीक है। अगर वो वाला मामला हो जाता है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि हर एक बंदा एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली वो याद है खलीफा राबी ने कहा था कि आज हज़रत ईसा आ जाए, हम उनके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी वहाँ लड़ेंगे। भी लड़ेंगे बेशक। मैं कहता हूँ कि हम आज ही पता चाहिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ इन 10 बंदे चुक लवे हर बंदा ईमान लाएगा। या ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ मैं ਥੋੜੇ 10 ਦਿਨ मैंने- ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ। वो क्यों? ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं उसको उनकी खैर है, उनकी खैर है, उनकी खैर है। ये इतना बड़ा मसला है। अब आप देखो ना बंदेशा भाई, अब मुझे लगता है आप जो मामले की नोयत को ना आप समझ नहीं पा रहे ये कितना बड़ा, इतनी मुबारक दुआ है। एक तो पहले ये जाएं, फिर दूसरा इनको पता है उन्होंने कहाँ पे आना है, सबको पता है ना कि हज़रत ईसा ने किस वक्त किस जगह पे आना है। दमिश्क में कोई मस्जिद है, उसका मीनार है, वहाँ पे फरिश्तों पे उतरना है, तो अब वो ज़्यादा लोगों के साथ आएंगे। इन लोगों को वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सारे होटल्स बनाने चाहिए, 5 स्टार होटल्स, और वहाँ पे मतलब कैमराज, आजकल हाई डेफिनेशन कैमराज अवेलेबल हैं, ताकि वो जब भी आए फ़ौरन से कैप्चर हो सकें। दुनिया को यकीन दिलाना है भाई, शुबा ख़त्म करना है हमने। तो ये मसला एक ही सूरत में हल हो सकता है, उसके बगैर हल होने वाला नहीं है। 1 सेकंड में अल्लाह ताला हल कर देगा। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ जितने भी ਮੁਹੰਮਦ खत्म ਅਹਿਮਦ, अगर फर्ज करो अव्वल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ यार, ਆਪ फिर ਫਰਜ਼ ਕਰੋ क्यों कर ਆ ऐसे? ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। फिर नहीं समझ रहे आप। मैं कह रहा हूँ मेरी दुआ अगर पूरी होती, जो मैं करा रहा हूँ वो पूरी होती है, कौन है दुनिया का दिमागी मजजूब आदमी जो इनकार कर जाए? सर इमेजिन तो करें, पिक्चर तो बनाए अपने दिमाग में। और यार ये गल सुन, अबू जहल ने ईमान लाया कंट्रीज में ऊपर जा रहे हैं। अजीब गल्लां हाइपोथेटिकली गल्लां करदे पे हो। और यार अल्लाह ताला कादिर नहीं है अबू हर जहल ने अबू जहल ईमान लाया या सी? यार अबू जहल ने कोई आसमान से आता जाता देखा था किसी को? उधर तो कुरान मजीद तो ये कह रहा है कि तुम अगर फरिश्तों को देख सकते होते, वो ज़मीन पर चल फिर सकते होते, तो मैं ज़रूर इनमें से बना देता। और उसका प्रॉब्लम ही ये था कि रसूलुल्लाह से अल्लाह बातें कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं करता, मैं इतना सियाना हूँ। तो उसका तो प्रॉब्लम अलग थे। मैंने जो दुआ रखी है, सर फौरन सजदे में गिर जाएगी दुनिया। इमेजिन करें दुनिया के सारे मतलब मुस्लिम कंट्रीज में खत्म नबूवत के मुजाहिद ऊपर जा रहे हैं आसमान पे। सर मुझे बताइए, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਿਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ,
कीतियां तुझे सारे ने नहीं, उसके लिए जलसे की नहीं जरूरत नहीं है नहीं 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 स्पेशल। उसके लिए नहीं, उसके लिए इसके लिए उन्हें जवाब दियो ना सारे सुनने वाले भी। मुझे मौका देंगे तो दूंगा जवाब मैं। उस दुआ पे अमल ऐसे नहीं हो सकता, हमें एक जलसा अरेंज कराना पड़ेगा। जलसा है अश्कबार या जलसा है आंसुआं। वहाँ पे सिर्फ ये काम होगा अगर रोना है हमने 3 दिन। ड्यूटी पे वो पानी लगाने पिलाने वाले होते हैं ना, उनकी जगह सिग्मा भाई मेरी गल मेरा नाम होंदा वा ते लक्ष सीसीटी भाई तुसी सुन रहे हो मेरी गल तुहानू समझ आंदी? सिग्मा भाई चले गए हैं। सिग्मा भाई को मेरे ख्याल मौका नहीं दिया, उनको दोबारा बुलाते हैं, उनको फिर मौका देते हैं। सिग्मा भाई नहीं है। मनीषा भाई सॉरी यार, मैंने बहुत ज्यादा कोई बात नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, जज्बाती हो गया कि ये दुआ कोई होनी मसला चाहिए। नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ तो आ रही है खान तनु नाले ऐड दसन लगा नाले गाला कड्डा छापे। खान साहब हाँ, उनको पता नहीं क्या हुआ। सीसीटी भाई आपको दुआ के बारे में कोई बुरी तो नहीं लगी? ये दुआ मांगनी चाहिए ना खत्म नूर के मुजाहिदों को। मंगी जा तेरा तेरा बड़ा मामला। मोहम्मद अहमद साहब मैं अभी ना नहीं म्यूट खोल सकता, मैं ना काम पे हूँ, मेरे पास काफ़ी काम है, मैं म्यूट नहीं खोल सकता। ओके 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 ओके। चलिए अकबर भाई की कॉल आई हुई है, मुझे लग रहा है उनकी लग रही है क्लास कोई मीटिंग चल रही है दोबारा से। तो अहमद भाई सॉरी सर, मैं असल में ना आपको पता है ना सिलसिला आलिया, जिस वक्त सिलसिला आलिया होता है ना सारा। जी जी आप सुनाए माशाल्लाह इफ्तारी शरीफ फरमा ली आपने? इफ्तारी हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम कर लिए हमने। अल्लाह आपने ताला दुआ सब- सुनी है? दुआ की तहरीक अभी मैंने कराई है, आपने सुनी है? नहीं मैं बड़ा बिजी था, मेरे ना भाई की कॉल आई हुई थी, वो सुन रहा था। जी आप दोबारा कर लीजिए। मिस कर गए हैं। जे खान साहब आए थे, जी जी उनके आगे एक गुजारिश रखी कि क्या आप अपने लिए दुआ करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हज़रत को उठा लिया आपको भी उठा ले अल्लाह, अच्छा और फिर आप हज़रत ईसा के साथ वापस आओ एक आर्मी की सूरत में। और क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर ख़त्म नबूवत का जो मुजाहिद है उसको अल्लाह ने उठा ले। और वो हज़रत ईसा, क्योंकि जब उन्होंने आना उन्होंने जंग करनी है ना, भूखे मार मार के मार देना है, दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो वो मर जाएगा। तो उनको एक आर्मी दरकार है, सूअर कत्ल करने हैं, सलीब तोड़ने हैं। तो अब ये जो काम बहुत दिनों में होना है वो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर पूरी आर्मी साथ आएगी तो। और उसके साथ एक और बड़ा अहम मसला हल होगा, वो ये कि कुरान मजीद में बताता है अल्लाह ताला कि वो शुबे अल्लाह ना, वो शुबे में है, उनको पता नहीं है। अल्लाह मियां ने थोड़ा उनको मतलब कंफ्यूज किया है ना। तो अब इमेजिन करें दुनिया के मुसलमान कंट्रीज में से खत्म नबूवत के मुजाहिद ऊपर जा रहे हैं, तो क्या सारी दुनिया हर मजहब सर नहीं झुका देगा जमीन पे? अल्लाह ताला की बात समझ नहीं जाएगा, मान नहीं जाएगा? तो कितनी मुबारक दुआ है ये, समझ जाएगा। तो वो जे खान साहब गुस्सा करके गालियां देने लग गए कि तुम ये दुआ क्यों कर रहे हो, हालांकि ये उनका कीदा है। हाँ जी ये खान साहब। तो मैं दरखास्त करूंगा आपसे और सीसीडी भाई से, अब ये एक ये दुआ का सिलसिला जारी कराया जाए, खत्म नबूवत के मुजाहिदों से ये दुआ कराई जाए कि वो दुआ करे अपने लिए कि या अल्लाह चुक ले सानू ते असीं हज़रत ईसा दे नाल आना है। हाँ क्या दुआ ये बहुत रमज़ान का महीना है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है, तो ये कैंपेन चलाएं ताकि वो शुबा ख़त्म हो, हम इनके साथ लगने वाले बने और एक बड़ा मसला हल हो जाए। ये सीसीडी साहब ना अभी काम पे बिजी हैं, तो मैं ना उनको भेज देता हूँ लिख के। वो जो है ना इसके क्या कहते हैं वो लगा देते हैं, इसका पोस्टर बना के